Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed chapter 9, means history portion, and today we are going to start civics portion. Okay, in civics we have to study in this semester, second semester, means 31 chapter and chapter 32. So today we are going to start chapter 31. Okay beta, and the name of chapter is understanding our system of criminal justice, and in this main types of judicial cases, criminal, civil and criminal. Okay, and also we will study about distinction between, means differences between civil cases and criminal cases, and also role of different persons, agencies in the criminal justice system, and also we will study about in detail about their work, their functions, and also about FIR, first information report, and also we will study about Supreme Court's directive or not accepting FIR by the police, and also role of the prosecutor, and also we will discuss role of defense lawyer, and role of judge, court, and also reason why different persons need to play different roles as part of the criminal justice system, and lastly we will discuss about what is a fair trial. Okay, these are the topics which we will discuss in this chapter, in chapter 31. Okay beta, so let's start chapter 31, understanding our system of criminal justice. Okay, so first topic, main types of judicial cases, civil and criminal. Okay, broadly speaking, there are two types of judicial cases, civil cases and criminal cases. While we are talking in detail, in broad, we come to know about two types of cases. Okay, first one criminal cases and second one civil cases. Is it clear? Okay, and now let's come to know differences between civil cases and criminal cases. Distinction between civil and criminal cases. There are some distinctions between the civil cases and the criminal cases, and here also some differences between criminal cases and civil cases. Okay, first, cases that are concerned about private rights are called civil cases. जो केसेस हम प्राइवेट राइट्स के से रिलेटेड होता है, हमारी निजी राइट्स के से रिलेटेड होता है, वो क्या होता है, सिविल केसेस होता है. ठीक, while cases that deal with wrongs done against the community as a whole are called criminal cases. और मान लीजिए कि दूसरी तरफ हम देखें तो कोई बहुत बड़ा अपराध हम समाज के विरुद्ध करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल केसेस. क्राइम करना, पाप करना. ठीक. सेकेंड, अ फ्यू केसेस दैट अट्रैक्ट सिविल एक्शन इंक्लूड. कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि सिविल के अंतर्गत आते हैं. कौन कौन से सिविल केस के अंतर आते हैं, देखिए. ट्रेसपास मीन्स अपराध, नेग्लिजेंस किसी को नेग्लेक्ट करना, ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस. ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए किसी चीज़ में समझौता हुआ फिर उसका भी ब्रेक हो गया, या किसी मैट्रिमोनियल ब्रेकअप, ये केसेस. वाइल केसेस ऑफ सीरियस नेचर लाइक डैट ऑफ मर्डर. और मान लीजिए कि कोई बहुत सीरियस केस है, उस स्थिति में, उस नेचर में उसको क्या कहते हैं, जैसे कि मर्डर है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी,
cheating, food adulteration, etc. attract criminal case action. ये सब किस केस के अंतर्गत आते हैं? मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दिया, किसी फूड में यानी मिलावट कर दिया बच्चों के लिए, या किसी में मान लीजिए कि वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये सब क्या आते हैं? क्रिमिनल केस आते हैं। ठीक। थर्ड, द रेमेडीज एंड प्रोसीजर फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर क्वाइट डिफरेंट। जो उपचार है, किसका इलाज, उपचार जो समाधान है किसके लिए, और जो प्रक्रिया है दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। इनका समाधान बिल्कुल ही अलग है। सिविल केस का समाधान और क्रिमिनल केस का समाधान बिल्कुल ही अलग है। ओके। The remedies for civil wrongs include claim for compensation or specific performance or injunction and such other remedies. मान लीजिए कि कोई रेमेडीज या समाधान और सिविल रॉन्ग्स के लिए क्या इंक्लूड हो सकता है कि हम उसके नुकसान का भरपाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी का नुकसान कर दिया तो हम उसको भरपाई कर सकते हैं। While the remedies in criminal cases, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस का समाधान है वो क्या है? इंक्लूड अवॉर्डिंग पनिशमेंट टू द गिल्टी, हम जो अपराधी है उसको पनिशमेंट देते हैं, एंड टू कंपनसेट द विक्टिम फॉर हिज हर ग्रीवेंस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू अवॉर्डिंग punishment to the guilty and also compensate means उसको भी मान लीजिए उसका भरपाई करते हैं, and also for to victims, जो victims है his her, and also grievance means क्या होता है? उनकी शिकायत under some specific conditions. Many civil cases are settled out of court by the two parties. Such is not the case with the criminal cases. कभी कभी क्या होता है कि सिविल केसेस में हम अक्सर केसेस को अपने आप में ही सुलझा लेते हैं, दो पार्टियां अपने आपस में ही सुलझा लेती हैं, लेकिन क्रिमिनल केस के साथ ऐसा अक्सर नहीं होता है। एंड बट केस विद द क्रिमिनल केसेस बिकॉज द स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। क्रिमिनल केस के साथ क्यों समझौता नहीं हो सकता है, क्यों नहीं उसको सुलझा सकते? क्योंकि इसके साथ स्टेट भी इन्वॉल्व होता है। ओके। नाउ रोल ऑफ डिफरेंट पार्टीज एजेंसीज, और इसके लिए बहुत सारे लोगों का रोल होता है। पहला क्या है? इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम various persons agencies especially the following play an important role। और क्रिमिनल केसेस में कुछ लोगों की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होती है जो कि इसके लिए काम करते हैं। पहला क्या है? द पुलिस। सेकंड क्या है? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स इसको क्या कह सकते हैं आप? सार्वजनिक अभियोक्ता। ओके। एंड डिफेंस लॉयर की भी ज़रूरत पड़ती है, प्लस जज और कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द पुलिस। पहले किसका रोल होता है? पुलिस का। एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज द पुलिस। यू नो दिस ड्यूरिंग द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पुलिस इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस का क्या रोल है। अंडर द कॉलोनियल रूल इट्स मेन फंक्शंस वेर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। और कॉलोनियल यानी ब्रिटिश के ज़माने में इनका क्या काम था? ओनली वेर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, और जो क्राइम होती थी उनकी छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, एंड डिटेंशन ऑफ क्रिमिनल्स, अरेस्ट, कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड गेटिंग कन्विक्शन। और ये सब सारे काम उनके होते थे।
These functions of the police are called traditional functions. और इन सारे कामों को एक नाम दिया गया था जिसको क्या कहा जाता था, ट्रेडिशनल फंक्शंस. ओके. But with the dawn of independence and development of democracy in India, the whole concept of police functions has greatly changed. लेकिन after independence जो पुलिस की परिभाषा है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है. The Indian Constitution guarantees certain fundamental rights to every arrested person, जिसमें कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं. किसको किसको बेटा, अरेस्ट पर्सन को. अरेस्ट पर्सन के पास भी कुछ राइट्स हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज़ द फॉलोइंग राइट. आर्टिकल 22 के तहत हर एक गिरफ्तार जो हुआ है, अरेस्ट हुआ है पर्सन, उसके भी कुछ राइट्स हैं. देखते हैं उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं. ओके. फर्स्ट, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. पहले उनको गिरफ्तार करने से पहले उनको इन्फॉर्म करना है, उनको सूचना देना है कि आपको किस लिए, किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक. सेकेंड, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. एंड ऑल्सो उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स. थर्ड, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. मान लीजिए कि आप किसी अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं, तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसको मारते पीटते हुए ले चलिए अपनी कस्टडी में, आपके देख रेख में है तो उसकी खुद धुलाई कीजिए, उसकी चमड़ी उधेड़ दीजिए. ऐसा कुछ आपको अधिकार नहीं मिला हुआ है. नेक्स्ट, confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused. जो कन्फेशन मान लीजिए कि वो स्वीकार करता है, तो जो किसी भी चीज़ को वो अगर स्वीकार करता है पुलिस कस्टडी में, उसको एविडेंस के तौर पर क्या नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. Next, a boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning. और किसी बच्चे को यानी लड़के को 15 years से जो कम है और लेडीज़ को पुलिस स्टेशन में केवल क्वेश्चन पुट अप करने के लिए उनको नहीं लाया जा सकता है. ठीक. As a result of these rights, the police is now expected to do various welfare functions in addition to the traditional functions. इस तरह से आपने देखा ना कि पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं, उनके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं. किसके लिए? वेलफेयर फंक्शन, हर लोगों की भलाई के लिए काम है, और साथ साथ में ट्रेडिशनल फंक्शंस भी हैं. ठीक. Today only this much. Tomorrow we will continue the same topic. So here's your homework data. Learn exercise B of chapter 9. Okay. Thank you.